Russian formalism today. And before I start this class on Russian formalism, I would like to speak a little about what we have studied so far. We have studied just one topic, that is new criticism, and let me put my mobile phone on silent mode. Okay. So, in new criticism, as we've seen, that new critics did what? They focused on the words on page, and according to them, caring for any other thing apart from the words which were given to the reader was just a wastage of time. Okay, so they just cared about the words on the page. But as you must remember that we studied Matthew Arnold and T.S. Eliot just before studying new criticism, and the reason for that was uh, new critics value, or new critics value that they give to the culture. Rishit, you have to go out. Close the door. Yes, thank you. So new critics give value to the culture. Okay, and they don't give value to the biographical details of the author. They don't give value to the historical context, but they give value to the social context only, and they consider culture to be an important element. Okay, from them we are moving towards Russian formalism today. And it was about at the same time when new criticism was at its peak of fame, that in Russia there was another approach developing. Okay, and this approach, which was initially called continental formalism. Okay, remember the term continental formalism, which was primarily taking birth in Russia, and that is why later on it was called Russian formalism. It doesn't matter whether we call it continental formalism or Russian formalism. The chief term or the main term here is formalism. Okay, so formalism term के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और ज़्यादा famous ये Russian formalism के नाम से. That is why we are making our today's title as Russian formalism. Let me have a look whether we have some students or not. Okay, we've got some students. Yes, that will be enough. So moving back to Russian formalism. Now, both American and Russian formalists, there were some American formalists जिनके बारे में हम थोड़ी सी बाद में बात करेंगे, बिकॉज जो प्राइमरी हमारी कंसर्न रहेगी, जो हमारी मतलब नेट के पेपर की और सेट के पेपर की कंसर्न रहेगी, वो कंसर्न रहेगी किसकी? रशियन फॉर्मलिज्म की. जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो मुखारोवस्की से आए, चाहे स्क्लोवस्की से आए, जितने भी अपन क्रिटिक्स पढ़ने वाले हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इनसे ही आते हैं. तो इनको पहले पढ़ेंगे हम, एंड देन वील मूव टू सम ऑफ द अमेरिकन formalists. Okay, now both American and Russian formalist critics were basically concerned with the you know fact that what is there in a text that makes it literary. Okay, we've got a lot of text in front of us. We've got newspapers, we've got newspaper editorials, we have got some magazines, we've got so many other texts before us, including the literary text, of course. So Russian formalists were concerned primarily with the fact कि क्या ऐसा है किसी लिटरेरी टेक्स्ट में जो उसको लिटरेरी बनाता है. मतलब हम कैसे दो टेक्स्ट को देखकर बोल सकते हैं कि ये वाली टेक्स्ट तो लिटरेरी है और ये वाली टेक्स्ट नॉन लिटरेरी है. मतलब ये वाली टेक्स्ट जो है अखबार का आर्टिकल है, कैसे हम पता लगा सकते हैं? ये उनका प्राइम जो है कंसर्न था. पहली बात आप दिमाग में रखिएगा कि फॉर्मलिस्ट का प्राइमरी कंसर्न क्या था, दैट व्हाट इट इज देयर इन अ टेक्स्ट
that makes it literary. ओके, सो ये जो सेकंड पैराग्राफ में बात बोल रहा है ये, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अमेरिकन रशियन फॉर्मलिज्म दोनों ही एक साथ पल रहे थे, लेकिन ज्यादा पॉपुलर कौन सा हुआ? रशियन फॉर्मलिज्म हुआ. नाउ एज द नेम सजेस्ट्स, फॉर्मलिज्म फॉर्म से बना है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि दे वर मोर इंटरेस्टेड इन द एनालिसिस ऑफ फॉर्म, है ना. दे वर नॉट कंसर्न एट ऑल विद द कंटेंट ऑफ द पोएम और टेक्स्ट. मतलब टेक्स्ट में कंटेंट क्या है, क्या कहना चाह रही है, भाव क्या है ना, मैसेज क्या है, दैट वाज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स. ओके, फॉर्मलिज्म वाज बेसिकली कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ द फॉर्म. मतलब किस रूप में कहा गया है, दैट इज इंपॉर्टेंट. क्या कहा गया है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मलिस्ट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि फॉर्मलिज्म जो है उसका बेसिक कंसर्न क्या था, कि फॉर्म क्या है टेक्स्ट की. अभी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, आई कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड, क्योंकि जब मैंने पहली बार 2005 में ये पढ़ा था, न्यू क्रिटिसिज्म के जस्ट बाद में फॉर्मलिज्म, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अभी अभी मैंने न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ा है जिसमें कहा था कि टेक्स्ट पर फोकस किया जा रहा है, और फॉर्मलिज्म कह रहा है कि टेक्स्ट पर फोकस किया जा रहा है. देन व्हाई give two different names? One is new criticism and second is Russian formalism. But yeah, there is difference, and there is a lot of difference actually. The only similarity is between new criticism and Russian formalism is that they focus on text. Their primary concern, both of them, primarily is they are primarily concerned with the text, but the difference lies in how they see the text. Okay, so formalists see the text as form, कि फॉर्म जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कहा गया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. व्हाट दे वांटेड टू डू, दे वांटेड टू एस्टैब्लिश a way which was either scientific or nearly scientific to study literature. बिकॉज जहाँ लिटरेचर की बात आती है ना, वहाँ फिर साइंस नहीं आती हमारे दिमाग में. बिकॉज वट वी थिंक, वट वी फील, कि पोइम को जब हम पढ़ते हैं तो उसका जो इमोशनल इफेक्ट है, दैट मैटर्स अ लॉट. ओके, अब आप में से जिन लोगों ने मेरी क्लासेस ली हैं लास्ट वाली, जब मैंने बोला कि इमोशनल इफेक्ट, तो आपको तुरंत दिमाग में एक ऐसे का नाम आ जाना चाहिए. कौन से ऐसे का नाम आ जाना चाहिए? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, फिर भी आप अपने आप में रिपीट कर सकते हैं. कौन से ऐसे का नाम आ जाना चाहिए? द अफेक्टिव फैलेसी. ओके, विमसेंट एंड बेर्सले दोनों ने लिखा था ये, है ना, अफेक्टिव फैलेसी, है ना. तो हम तो मानते हैं कि इमोशनल जो इफेक्ट है ना टेक्स्ट का, वही इंपॉर्टेंट है. तो साइंस कहाँ से आएगा? बट रशियन फॉर्मलिस्ट वांटेड टू एस्टैब्लिश अ साइंटिफिक बेसिस फॉर द स्टडी ऑफ लिटरेचर, है ना. एंड दे वर एक्सट्रीम इन दिस. वो एक बिल्कुल बोलते हैं ना, कट्टरता जिसको बोलते हैं. They believed that human emotions and ideas expressed in a work of literature were of secondary concern and provided the context only for the implementation of literary devices. वो तो इतना एक्सट्रीम तक चले गए कि वो बोल रहे हैं कि जो कुछ भी भावनाएं, इमोशंस, आइडियाज, whatever is expressed in a poem, it is just a means, एक माध्यम है वो, to show the or showcase the literary devices which are used in that particular poem. तो मतलब आप इनको अगर माने हम, बिकॉज मैंने कहा ही था आपको कि जब हम कोई भी लिटरेरी थियरी पढ़ रहे होंगे तो हमें मानना पड़ेगा कि जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं, फिलहाल क्वेश्चन नहीं. तो इनको अगर हम माने तो हम ये मान के चलेंगे कि वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, कॉलरी जो भी हैं, वो जो कुछ भी लिख रहे हैं, their prime concern is what? Not the idea that they are providing us. Their prime concern was to showcase the figures of speech or the handling of that idea through their language. That was the prime concern according to the formalist. Okay, so if I give you an example, you must have read the poem written by S.T. Coleridge. The name of the poem was The Rime of the Ancient Mariner, है ना. तो Rime of the Ancient Mariner जो है उसमें you all know that it's a ballad. And ballad, what is a ballad without a story, है ना. स्टोरी के बिना बैलेड क्या होगा? बिकॉज बैलेड इज अ स्टोरी सॉन्ग, है ना, जो गाकर सुनाई जाए वो स्टोरी बैलेड क्या कहलाती है? राम कथा बैलेड है ना. एपिक भी है लेकिन राम कथा बैलेड है. नाउ
एसटी कॉलरी जब बोलता है कि वाटर वाटर एवरीवेयर, नोर ए ड्रॉप टू ड्रिंक, तो फॉर्मलिस्ट बड़े इंटरेस्टेड होंगे उसमें। एग्जाम्पल से बात ज्यादा समझ में आती है स्टूडेंट्स? क्यों इंटरेस्टेड होंगे? बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टोरी, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द मोरल परगेशन ऑफ मेराइनर। मेराइनर जो है कैसे एल्बेट्रोस को मारता है पहले, वो एक तरह से क्रूअल होता है, एक तरह से सिंफुल आदमी होता है, एंड देन व्हेन situations turn upward down, he faces the power of nature, and then he is altogether a changed man. Okay, but उस स्टोरी में फॉर्मलिस्ट का इंटरेस्ट नहीं होगा, दे विल बी प्राइमरीली इंटरेस्ट इन द लैंग्वेज, लाइक the lines like these, water water everywhere nor any drop to drink. ओके, इस तरह की लाइंस जो ऑर्डिनरी स्पीच से अलग हैं। अभी हम जस्ट आगे की स्लाइड्स में बात करने वाले हैं कि फॉर्मलिस्ट करते क्या हैं। Unlike the new criticism in America, they were not interested in the cultural and moral significance of literature. I've already told you that new critics, although they were primarily concerned with the text, they also paid attention to the cultural or social context, and they also believed in the moral significance of literature. That is the only reason I taught you about Matthew Arnold and T.S. Eliot. Okay, remember I told you about Matthew Arnold and T.S. Eliot before studying new criticism, because both of them, both Matthew Arnold and T.S. Eliot, believed that literature has this higher function of saving the culture, or we can say providing people with a moral to survive on actually. तो इसलिए न्यू क्रिटिसिज्म उनसे जुड़ा हुआ था। न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो मानता था कि कल्चरल और मोरल सिग्निफिकेंस होती है लिटरेचर की। नो, but these formalists, they wished to explore how various literary devices produce certain aesthetic effects. They were basically concerned with the devices that are used in a particular work and how those devices operate in a poem and create certain effects. कैसे वो इफेक्ट क्रिएट करती हैं, वो सब बातें मैं आपको इतना इजी लैंग्वेज में बताने वाला हूँ आज कि आज के बाद आप फॉर्मलिज्म तो कभी नहीं भूलेंगे, है ना? जैसे न्यू क्रिटिसिज्म आपको याद होना चाहिए, वैसे आप फॉर्मलिज्म कभी नहीं भूलेंगे। सो वी मूव अहेड। Before I move ahead, I have to have a look. Okay, we've got Jonu, Suman, Shivani. So people are not able to connect because some of the students were complaining me that they have low bandwidth, है ना? So they are almost always not able to take live classes. So that is not a matter because they can see the recorded class. Anyways, now it is generally said that formalism, especially Russian formalism, uh, has developed in three phases. Okay, there are three phases in the development of Russian formalism. Okay, and we can understand these three phases with the help of three metaphors, three different names. Okay, the first phase regarded literature as a kind of machine with various devices and functioning parts. Please listen to me very carefully because these three things are going to make a basis for you to understand the Russian formalism. The first phase considered literature as a machine. Okay, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो लिटरेचर को, जो फर्स्ट फेज वाले जो क्रिटिक्स थे जो एनालाइज कर रहे थे, उनके लिए लिटरेचर हैज नो अदर सिग्निफिकेंस देन दैट ऑफ मशीन। जैसे मशीन में अलग अलग डिवाइसेस होती हैं और उसके अलग अलग फंक्शनिंग पार्ट्स होते हैं, और वो फंक्शनिंग पार्ट्स और डिवाइसेस मिलके काम करते हैं तो वो मशीन काम करती रहती है। ओके, इट हैज नथिंग टू डू विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यू कैन से दे डिड नॉट कंसिडर अ पोएम टू बी समथिंग रिलेटेड टू लाइफ। ओके, मशीन की तरह उन्होंने ट्रीट किया क्योंकि उनका सिर्फ फॉर्म से कंसर्न था। सेकेंड फेज जो था उसमें जो क्रिटिक्स थे उन्होंने एक पोइम को, एक लिटरेरी वर्क को एक ऑर्गेनिज्म माना। ऑर्गेनिज्म मानने का मतलब क्या हुआ कि है तो ये अभी भी वेरियस पार्ट्स से मिलके बना हुआ है। ओके, जैसे ऊपर फर्स्ट फेज में था, लेकिन अब ये जैसे हमारा बॉडी एक ऑर्गेनिज्म है, ओके, जिसमें हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं, किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स, है ना, एंड मैनी अदर, वो सब मिलकर काम करते हैं, तो एक ऑर्गेनिज्म के रूप में हम भी काम करते हैं। सो मीन्स इट वाज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट, और वी कैन से इट वाज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट
in the favor of literature, in the favor of poetry, because the first phase did not consider poetry to be something living. Okay, but the second phase considered poetry to be something uh, like an organic whole. जब मैं ये बोलता हूँ ना ऑर्गेनिक होल, तो मुझे थोड़ा थोड़ा कौन याद आता है, और आपको भी याद आता होगा अगर आपने क्रिटिसिज्म पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा है तो टेंशन मत लेना, शिवानी और कुछ लोग नए भी हैं, राजश्री कुछ जैसे कुछ लोग नए भी हैं यहाँ पे ना। तो आप याद रखिएगा कि एस टी कॉलरी याद आता है मुझे। एस टी कॉलरी जो है उसने भी जो लिटरेचर है खासकर पोइट्री है उसको एक ऑर्गेनिक होल बोला था, ना कि अलग अलग पार्ट से बनी हुई कोई चीज बोला था ना। एंड द थर्ड फेज or the critics in third phase consider literary text as systems. Now, what is the difference between organism and system? Now, when we talk about organism, we mean that something is made of different parts, and those parts are working in a whole together to make that organism survive, or to cause the survival of that organism. Okay, but when we see something as a system, okay, we are moving one step ahead and thinking कि जो पार्ट्स एक सिस्टम का हिस्सा हैं वो एक पर्टिकुलर रूल के तहत काम करते हैं, एंड दीज रूल्स और दिस रूल is in the best interest of that system, and it is that rule that makes that system worth appreciating, worth what it is. जो ये है उसके वो काबिल बने, जो सिस्टम जैसा भी है उसके काबिल बने। वो काम कौन करता है? वो काम करते हैं उस सिस्टम के वेरियस पार्ट्स। तो फिलहाल आपको जो चीज याद रखनी है, तीन चीजें, कि फॉर्मलिज्म के जो तीन फेज थे उनमें पहले में तो फॉर्मलिज्म क्या मानता था कि मशीन है एक पॉइंट जिसमें अलग अलग पार्ट लगे हुए हैं। सेकंड में उसको ऑर्गेनिज्म माना गया, जैसे हमारा बॉडी एक ऑर्गेनिज्म है। थर्ड में उसको एक सिस्टम माना गया कि मतलब वो पार्ट जो है वो ऐसे ही काम नहीं करते हैं, दे वर्क अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, दोज रूल्स आर एक्चुअली प्री डिसाइडेड और प्री डिटर्मिन्ड। तभी कोई चीज हमें समझ में आ सकती है। ये बात आगे जाके और भी पढ़ेंगे हम ना। कोई भी चीज अगर आउट ऑफ सिस्टम कैसे भी लिख दी जाए तो वो समझ में नहीं आएगी हमें ना। सो अब हम रशियन फॉर्मलिज्म, क्योंकि हम जब कोई थ्योरी या कोई क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है उसमें? सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि उसमें क्रिटिक कौन थे, उन्होंने कहा क्या क्या है। द फर्स्ट क्रिटिक दैट वी आर गोइंग टू, द फर्स्ट थियरिस्ट आई वुड से दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज विक्टर श्लोवस्की। विक्टर श्लोवस्की, अच्छे से याद कर लेना इसको, बिकॉज रशियन नेम्स हैं, थोड़े से याद करने में प्रॉब्लम आएगी हमें, है ना। तो विक्टर श्लोवस्की was among the first of the influential Russian formalists. Okay, and he was a leading figure in a group known as Opayas. Opayas के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुके हैं ना कि who was associated with the group Opayas। तो ओपायास जो है उससे एसोसिएटेड था कौन? विक्टर श्लोवस्की। नाउ श्लोवस्की का एक ऐसे है जिसका नाम है आर्ट एज टेक्निक। आर्ट एज टेक्निक, ये भी आपको याद रखने हैं। मुझसे पूछ रहे थे, शिवानी भी पूछ रही थी कि सर कैसे पढ़ना है, तो बता दूं आपको मैं कि आपको जितने भी हम जब क्रिटिसिज्म और थ्योरी पढ़ रहे होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स के नाम आएंगे वो आपको कम से कम नाम तो याद रखने ही है। और कुछ वर्क्स ऐसे भी हैं जिनकी समरी या जो वर्क आप पढ़ पाओ तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको परसों बताया था, जो लोग नहीं थे परसों, कि एलियट के तीनों एसेस, तीनों एसेस कौन कौन से? ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, मेटाफिजिकल पॉइंट्स एंड हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। ये तीनों एसेस पढ़ने चाहिए आप लोगों को, है ना, बिकॉज इनसे बहुत बार क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो इन हिज एसे Art as Technique, which was published in 1917 and which was also the manifesto of the group. Okay, manifesto of the group का मतलब क्या है कि ग्रुप का मेन जो वर्क था वो कौन सा था? Art as Technique. And in this essay several concepts were formulated, which are crucial to understanding the premises of Russian formalism. Russian formalism के जो premises हैं, जो rules हैं, जो regulations हैं, जो इसके अंदर concepts हैं, वो कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं उनमें से जो एक इस ऐसे से हमें मिल जाएंगे, आर्ट एज
technique which was written by Victor Shklovsky. हाँ, अब हम आपको सारी चीजें समझनी पड़ेंगी बहुत ध्यान से, इनमें टाइम भी लग सकता है, जितना भी टाइम लगेगा हम लेंगे. ओके, द फर्स्ट ऑफ दीज concept is habitualization. Okay, what is habitualization? Before I move further ahead in the slide, I would like to tell you something about habitualization. Okay, just give me a second. Okay, so there was a message. I thought some student has messaged me regarding his inability to join the class. Anyways, what is habitualization? Habitualization का मतलब ये है कि हम जो लोग हैं ना, हम ह्यूमन बींग्स जो हैं, वो बहुत जल्दी जो है किसी भी चीज के हैबिचुअल हो जाते हैं, whether it is a good thing or a bad thing. Okay, and there are a hell lot of examples to explain this, but मैं आपको बहुत easy वाला example समझाऊंगा. लेके आगे भी आएंगे example कि हम जब गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं, whether it is a car or a scooty or a cycle, whatever it is, हम जब उसको चलाना सीख रहे होते हैं तो हाउ फोकस्ड आर वी, कितना फोकस होते हैं हम लोग कि कहीं खड्डा ना आ जाए कहीं, एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ एवरी टर्न दैट वी आर टेकिंग व्हाइल वी आर लर्निंग टू ड्राइव समथिंग, है ना. हम सब कुछ बहुत कॉन्शियसली कर रहे होते हैं, बट आफ्टर दैट अ फ्यू डेज देयर कम्स अ फेज जब हम चलाना गाड़ी को सीख जाते हैं अच्छे से, and we are so habitualized that sometimes it happens that we started driving from our house or from our work. Suppose we have started driving from our work, and in no time, without consciously knowing it, we are at our home. Okay, and if we try to remember how many turns did we take, वो याद ही नहीं आएगा हमें, बिकॉज हमारा जो अनकॉन्शियस कॉन्शियस जो भी माइंड है वो सब जो है उस ड्राइव पे फोकस होता है, और हमें बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज वी आर हैबिचुअलाइज्ड. ओके, एंड what is the you know function of this habitualization in this formalism? Slowski says that we human beings are actually so habitualized with things that we have started taking life as for granted. हमारे लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है ना, एंड वी कंसिडर और फील और थिंक ऑफ थिंग्स एज वेरी जनरल. ओके, और जैसे एल्जेब्रिक सिंबल्स होते हैं ना, उनकी वैल्यू कैसे इस्टेब्लिश हुई हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते. स्लोवस्की कहता है कि हम भी चीज़ों को बस ऐसे ही देखते हैं. वो एग्जांपल देता है कि एक चेयर जो है जब घर में नई नई आती है तो उसकी एक इंडिविजुअलिटी होती है, हम सब ध्यान दे रहे होते हैं कि एक नई चेयर है ना, लेकिन जैसे ही वो चेयर पुरानी होती है तो उसकी इंडिविजुअलिटी खत्म. वो हमारी घर की बाकी चीज़ों की तरह, जैसे हमारे घर में बाकी चीज़ें होती हैं, बस वैसे एक ऑब्जेक्ट बन जाती है, और अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली हम क्या करते हैं, उसको घसीटते हैं, उसके ऊपर बैठ जाते हैं. ओके, अब ये सब बातें कुछ लोगों के दिमाग में चल रही होगी कि क्या हो रहा है ये, हम लिटरेचर के बारे में पढ़ रहे हैं या चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं. अब हम लिटरेचर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, और इससे इस हैबिचुअलाइजेशन जो है, इससे स्लोवस्की की टर्म आती है हमारे सामने, डीफैमिलियराइजेशन. जो जो एक्चुअली उसने रशियन जो टर्म यूज की थी वो क्या थी, ऑस्ट्रेनिन. ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, मेकिंग स्ट्रेंज. उसको अंग्रेजी में हमने लिखा है डीफैमिलियराइजेशन, यानी कि मेकिंग स्ट्रेंज. अब वो कहता है कि पोइट्री या आर्ट का मेन फंक्शन क्या है, कि वो उन चीजों को जो हम जिनसे हम इतने ज्यादा फेमिलियर हो चुके हैं कि हमारा उनमें इंटरेस्ट ही नहीं रहा है, उन चीजों को क्या करती है, डीफेमिलियराइज करती है, हम उन चीजों को स्ट्रेंज बनाती है. अगेन आपको वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों याद आ जाने चाहिए एक साथ. वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने जब लिरिकल बैलेट्स लिखने का प्लान किया था, है ना, 1798 में, तो उन्होंने अपने अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ली थी. वो जिम्मेदारी क्या थी, कि वर्ड्सवर्थ जो है वो क्या करने वाला था, कि बहुत ही जो सिंपल चीजें हैं, उन सिंपल चीजों को वो क्या करके बताने वाला था, स्ट्रेंज करके बताने वाला था.
कैसे? जब वो नाव में जा रहा है या जब वो पेड़ों में जा रहा है तो पेड़ों में विद व्हाट स्ट्रेन साउंड डिड द थंडर क्लैप्स, कि किस तरह से, किस आवाज से, कितनी अजीब आवाज से बादल चमका। जब वो अंडे चुराने लगता है किसी पक्षी के, तो कैसे उसको बादल घूर रहे होते हैं। तो मतलब जो कॉमन चीजें हैं उनको स्ट्रेंज बना रहा था कौन? वर्ड्सवर्थ। और कॉलरिज ने क्या जिम्मेदारी ली थी कि वो स्ट्रेंज को कॉमन बना देगा। स्ट्रेंज को कॉमन बना देगा मतलब जब वो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में हमारे सामने, या यूं कहें कि मैरिनर के सामने डेथ आकर खड़ी हो जाती है, तो डेथ आकर खड़ी हो जाती है तो डेथ का डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है। तो वो इतना एक्यूरेट और इतना शानदार डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है कि उसकी एक टर्म है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। आपने सुना हो अगर, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, दिस टर्म इज एसोसिएटेड विद एसटी कॉलरीज। और चिंता मत करना कि ये बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, हमें याद कैसे होंगे, मैं सब कुछ याद करवाऊंगा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ बस सिर्फ एक बार। सो यहाँ पर भी स्क्लोवस्की कह रहा है कि एक आर्टिस्ट जो होता है उसका पर्पस क्या होता है कि वो फैमिलराइज, जिनसे हम हो चुके हैं उन चीजों को डीफैमिलराइज करके हमारे सामने प्रेजेंट करती है, एक पोएम या एक वर्क ऑफ आर्ट। और जब कोई चीज डीफैमिलराइज होती है, जैसे एक आप रास्ते पे जा रहे हैं, रास्ते पे आप जो चीजें रोज देखते हैं वही अगर आपको आज भी देखने को मिलेंगी तो आप ध्यान नहीं दोगे। लेकिन जैसे ही उन आम चीजों के बीच में अचानक से एक नई चीज रख दी जाए या कोई स्ट्रेंज चीज रख दी जाए तो आपका ध्यान तुरंत उस पे जाएगा। एम आई राइट? यस, आई कैन हियर यू इन माई माइंड्स आई कि आई एम राइट। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि पोइम लिखते वक्त जब कोई फिगर ऑफ स्पीच यूज किए जाते हैं, जब मेटाफोर यूज किए जाते हैं, जब पैराडॉक्सेस यूज किए जाते हैं, तो क्या होता है एक्चुअली? होता ये है कि हमारे सामने एक ऐसा आइडिया प्रेजेंट किया जाता है जिससे हम फैमिलियराइज नहीं है। जैसे अचानक से वर्ड्सवर्थ बोलता है कि चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, एंड वी स्टार्ट थिंकिंग, अरे ये क्या? हमने तो ये सुना है कि मैन इज द फादर ऑफ चाइल्ड, बिकॉज मैन जनरली बड़े आदमी को बोलते हैं। बट वर्ड्सवर्थ कुछ अजीब बोलता है, कुछ स्ट्रेंज बोलता है, और जब वो स्ट्रेंज बोलता है तो हमारे सामने कोई ऐसी चीज आती है जिससे हम फैमिलियराइज नहीं है। और जब फैमिलियराइज नहीं है तो हमारा ध्यान जो है अचानक से उस पर जाता है, एंड वी स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन इट। एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ आर्ट, कि इट मेक्स द स्टोन स्टोनी, इट मेक्स द लाइफ इंटरेस्टिंग। Okay, so the purpose of art is to impart the sensation of things as they are perceived and not as they are known, है ना? एक किसी चीज को सिर्फ जानना और एक उसको महसूस करना आर टू डिफरेंट थिंग। सो आर्ट क्या करती है? आर्ट चीजों को हमारे सामने वैसे नहीं प्रेजेंट करती है जैसे हम उनको जानते हैं। आर्ट चीजों को हमारे सामने वैसे प्रेजेंट करती है जैसे हम उनको महसूस करते हैं। He then proceeds to demonstrate how some great writers, टॉल्स्टॉय और पुश्किन जो रशियन राइटर्स हैं उनके एग्जांपल देता है वो, कि किस तरह से उन्होंने, इन दोनों राइटर्स ने कॉन्शियसली जो है डीफेमिलियराइजेशन के लिए टेक्निक्स का यूज किया है अपनी राइटिंग्स में। Okay, so before I move ahead to the next slide, I must repeat a few things in a very short manner कि defamiliarization क्या होता है, कि when something is presented before us in a strange way, और strange way पोइट्री में क्या होगा? फिगर्स ऑफ स्पीच होंगे डेफिनेटली, है ना? तो फिगर्स ऑफ स्पीच जो है उनकी हेल्प से जब कुछ हमारे सामने स्ट्रेंज वे में प्रेजेंट किया जाता है तो हमारा ध्यान जो है, हमारी अटेंशन जो है वो अचानक से अट्रैक्ट होती है उनकी तरफ। And when our attention is attracted towards it, so it simply means that the poem or the work of art is able to make our life a little bit interesting, which was so far boring, because हम generalized और familiarized way में जिए जा रहे थे, है ना? So that is the power of defamiliarization according to Victor Shklovsky। और ये सब बातें फॉर्म की तो है ना, कि फॉर्म मतलब उसकी जो फॉर्म होगी, जो हम एनालाइज कर रहे होंगे कि उसमें ये फिगर ऑफ स्पीच आया, इसमें ये पर्सोनिफिकेशन आ गया, इसमें मेटाफोर आ गया, है ना? आफ्टर what we have studied in Victor Slowacki, we are going to have a look at the theories of narrative. But before that, just this first point is not related to theory of narrative. It is also in this essay that we find the famous formulation which makes clear the priorities of Russian formalist aesthetics. The object is not important. Now, आपको पहले ही बोल चुका हूं मैं, कंटेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट हाउ द कंटेंट इज प्रेजेंटेड इज इंपॉर्टेंट।
तो वही बात यहाँ बोली जा रही है कि जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो चीज है जो प्रेजेंट की जा रही है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट द वे एन ऑब्जेक्ट इज हैंडल और प्रेजेंटेड is important in Russian formalism. Okay, now we are moving to the theories of narrative. Now, Russian formalism में theories of narrative का मतलब जानते हैं आप, because story को सुनाना जो है, it is in a way called narrative, है ना? narrative का मतलब भी क्या होता है? story को सुनाना या story. And in theory of narrative, what is basically focused upon by Russian formalists? They primarily focused on the distinction or the difference between story and plot. स्टोरी और प्लॉट के ऊपर उन्होंने फोकस किया है, और स्टोरी और प्लॉट के ऊपर फोकस करने का कारण भी फॉर्म ही है। बच्चों बच्चों और बड़ों दोनों है ना, स्टूडेंट्स। और बच्चों निकलेगा तो यू कैन बेयर विद मी ना, बिकॉज फिलहाल तो टीचर हूं तो बच्चों बोलने की आदत है मुझे। नाउ स्टोरी और प्लॉट की बात जो है ना, इसमें डिफरेंस की बात जो है वो नई बात नहीं है बच्चों। अरिस्टोटल जो है ना, अरिस्टोटल वे बैक इन 4th सेंचुरी बीसी, तब ही उसने स्टोरी और प्लॉट में अंतर कर दिया था, है ना। स्टोरी जो है वो तो क्या है, एक ओवरऑल ओवरऑल कहानी कि राजा के पैदा होने से राजा के मरने तक की कहानी। बट प्लॉट, जिसको वो माइथोस बोलता है, प्लॉट क्या होता है? प्लॉट होता है कि राजा के पैदा होने से लेकर मरने तक के जो इंसिडेंट है उनको किस क्रम में लगाया गया है, उनको किस सीक्वेंस में लगाया गया है। वो सीक्वेंस जो है, इट वाज कॉल्ड माइथोस और प्लॉट। तो अरिस्टोटल ने भी बहुत पहले, ये तो 20वीं शताब्दी की बात चल रही है, 1930s 1940s की बात चल रही है। तो अरिस्टोटल ने तो 2300 साल पहले ही बता दिया था कि भी स्टोरी में और प्लॉट में डिफरेंस होता है। ये आगे वाली बात भी वही है। तो फॉर्मलिस्ट को क्या कहना है इस बारे में? ओके, फॉर्मलिस्ट को क्या कहना है, ये बात करेंगे हम। ये अरिस्टोटल की थ्योरी को ही समझा रहा है, क्योंकि ये मैं आपको अलग से पढ़ाने वाला हूँ अरिस्टोटल में, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। द टाइम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ ग्रीक ट्रेजेडी फॉर एग्जाम्पल इज क्लियरली डिफरेंट टू दैट ऑफ द इवेंट्स इट रिलेट्स। कि किसी भी ट्रेजेडी में जो टाइम सीक्वेंस दिखाया जाता है ग्रीक में, वो टाइम सीक्वेंस डिफरेंट होता है उससे, उस इंसिडेंट से, उस इवेंट से जो इवेंट एक ट्रेजेडी में दिखाया जा रहा है ना। अभी मुझे लगता है मुझे बहुत ज़्यादा अरिस्टोटल के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वाई? बिकॉज वरना मुझे फिर वो सारे नियमों की बात करनी पड़ेगी कि वो कितने घंटे की ट्रेजेडी चाहता है, कितने दिन आ सकते हैं उसमें, एंड ऑल दीज थिंग्स। फिलहाल आप याद रखिए कि अरिस्टोटल जो है वो प्लॉट और स्टोरी में अंतर पहले ही कर चुका है। जो अंतर आज हम पढ़ने वाले हैं किसमें? फॉर्मलिज्म में। तो फॉर्मलिज्म को क्या कहना है इस अंतर के बारे में, उसकी बात करते हैं अपन, जो कि पॉइंट नंबर 2 से शुरू होती है। So Boris Tomaszkiewicz developed further a concept that Shklovsky had first formulated in his essay on the English author Lawrence Stern's Tristram Shandy. लॉरेंस स्टर्न एक इंग्लिश एसेज था, इंग्लिश नॉवेलिस्ट था, जिसका वर्क था ट्रिस्ट्रम शैंडी। उसके ऊपर बोरिस टोमास्किवस्की ने काम किया है। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स और फॉर्मलिस्ट थियरीज वर्कड अपॉन ट्रिस्ट्रम शैंडी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा, द आंसर इज बोरिस बोरिस टोमास्किवस्की। जो ये नाम मुश्किल है, मैंने पहले कहा था, पर याद हो जाएंगे आपको। अब इसमें वो दो टर्म्स यूज करता है जब वो इसकी स्टोरी को या इसकी स्टोरी और प्लॉट को एनालाइज कर रहा है, तो दो टर्म यूज कर रहा है। एंड द बेसिक टर्म और बेसिक टर्म फॉर द स्टोरी इज फैबुला। जो स्टोरी है उसको क्या बोला गया? फैबुला बोला गया। स्टोरी मतलब पता है ना आपको, राजा पैदा हुआ, राजा मर गया, ये कहानी है, उसके बीच में जो कुछ भी हुआ। एंड फॉर प्लॉट और द स्टोरी एज इट इज टोल्ड इन अ स्टोरी और इन अ नॉवल, इट इज कॉल्ड शूजे। ठीक है, शूजे, टी साइलेंट है इसमें ना। तो आप याद रखिएगा कि फॉर प्लॉट formalists use the term shuje, and for story they use the term fabula. Fabula and shuje, these are two Russian terms for story and plot. He says that one fabula can provide material for many shuje. ये तो सिंपल सी बात है ना भाई, समझ में पता है कि हमारी जो फिल्में हैं उनको ही देख लो ना आप, कितनी फिल्में ऐसी हैं जो लगभग लगभग एक ही कहानी पर बनी हुई हैं, बट द वे दे आर प्रेजेंटेड इज डिफरेंट। एलियट में भी हमने ये बात पढ़ी थी।
एलियट में मैंने कहा था आपको, एलियट ने कहा था कि अ गुड पोइट स्टील्स, अ बैड पोइट क्रिएट्स, कि एक बुरा पोइट जो होगा वो क्रिएट करने की कोशिश करेगा कुछ, और एक अच्छा पोइट जो होगा वो चोरी करेगा। बिकॉज वी हैव नथिंग न्यू टू से, एवरीथिंग वर्थ सेइंग हैज ऑलरेडी बीन सेड, है ना। तो इसलिए वो ये भी कह रहे हैं कि फैबुला जो है वो बहुत सारे सूजेट का मटेरियल प्रोवाइड करवा सकता है। स्टोरी एक ही होती है, कहने का तरीका अलग अलग होता है। अ नोशन विच वाज टेकन अप बाय लेटर फॉर्मलिस्ट एंड वाज आल्सो टू प्रोवाइड अ लिंक विद स्ट्रक्चरलिज्म। और भाई स्ट्रक्चरलिज्म भी इसके बाद, इसके जस्ट बाद जो थ्योरी आने वाली है वो कौन सी आने वाली है, स्ट्रक्चरलिज्म आने वाली है। और स्ट्रक्चरलिज्म जो है उसमें भी ये बात उठाई गई है, ये बात कही गई है कि एक कहानी को बहुत सारे तरीकों से कहा जा सकता है, बट स्ट्रक्चरलिज्म इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम फॉर्मलिज्म। उसकी बात हम तब करेंगे जब हम स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज जो मैंने आपको बताया अब तक वो क्या बताया कि फॉर्मलिज्म जो है it is basically a theory which gives focus, or which focuses only on the the form of the text. Okay, they do not bother themselves with the cultural or moral effect of a poem. Okay, and what do they do? They basically see the nuances or the you know strange things or strange occurrences that happen in a poem. Or to use the term given by Slovatsky, we can say a poet or an artist makes use of the technique named defamiliarization. Okay, and this defamiliarization happens because we are very much habitualized, and we are so much habitualized that nothing interests us. Okay, so it is the duty of a poem or an artist that he makes those habitualized things very strange or defamiliarized फॉर्म हमें मिलती है इनकी एक पोइम में, जिससे कि हमारा ध्यान जाता है इसके ऊपर। ओके, तो पहले तो हैबिचुअलाइजेशन की बात आ गई, फिर डिफैमिलियराइजेशन की बात आ गई, फिर हम विक्टर स्लोवस की बात कर चुके हैं। अभी हम थियरीज ऑफ नैरेटिव में हमारे सामने दो टर्म आई, फैबुला एंड शूजे, और ये दो टर्म्स जो हमें दी किसने है, बोरिस टोमास्किवेस्की ने, है ना। ये आपको कुछ बातें दिमाग में रखनी है, और बिकॉज ये रशियन नाम है, बिकॉज ये नई कॉन्सेप्ट है, आप इसको पढ़िएगा। और बहुत जल्दी ही मैं वो आधे घंटे वाला जो मैंने बताया था आपको कि आधे घंटे की एक स्पेशल क्लास हुआ करेगी अलग से, जिसमें मैं आपको बोल बोल कर लिखवाया करूंगा, चाहे आप कम ही लिख पाएं, क्योंकि मेरा जो रिकॉर्ड रहा है नेट की बैचेस का, इतने सारे सिलेक्शन का, मुझे नहीं लगता कि वो होता अगर मैं बच्चों को बोल बोल कर लिखवाता नहीं तो। भले आपको सारे नोट्स लिखे हुए मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी लिखना ज़रूरी है। ओके, सो विद दीज वर्ड्स आई वुड एंड टुडेज क्लास, एंड वी विल मीट टुमारो अगेन। एंड मैंने टेस्ट दिया हुआ है हमारी फैकल्टी मेंबर को एक न्यू क्रिटिसिज्म का, न्यू क्रिटिसिज्म की वीडियोस को जल्दी से ख़त्म करना, और उसकी जो नोट्स जो हैं आपके कंटेंट वाले सेक्शन में पड़े हुए हैं उनको भी देखना, सो दैट आप जब टेस्ट दें तो आपको थोड़ा अच्छा फील हो। ओके, सो शिवानी, सुमन, जोनू, रेस्ट ऑफ द अदर्स आर लेफ्ट, so we are going to meet tomorrow again, and that will be all for today. Good night.